बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। Chapter 1, that is about human organ systems. It is our 6th lecture in which mechanism of respiration will be discussed in detail. The corresponding SLO is describe the mechanism of respiration in humans. In our lecture 5, we discussed the first part of respiration mechanism, that was breathing. We discussed earlier that mechanism need two things to produce energy. Respiration actually an energy producing process which needs two things to produce energy: glucose and oxygen. Glucose comes from food through the process of digestion, while oxygen comes from air through the process of breathing. We have discussed until now that both processes. Now we see how these two things, glucose and oxygen, are utilized to produce energy. Our textbook page 13 and page 14 will support us in this regard. The topic 1.6.2, respiration in human and its mechanism, is our target topic. It will help us to achieve the SLO. First of all, we define the respiration in general. Respiration is actually an energy producing process. It is our common phrase that energy comes from food. We eat food so that we may have enough energy to do our work. Is it true or not? It's true to some extent. The food we contain some nutrients. These nutrients are, the major of them are carbohydrates, proteins, fats, and minerals, vitamins, etc. But among all these, three are the major one. These nutrients are converted into their simplest form. Carbohydrates is changed into sugars which contain glucose or may not contain glucose. Proteins are changed into amino acids. Fats are changed into fatty acids. These are the forms that blood is able to absorb and transfer them to each cell of the body to produce energy. And the conversion of nutrients present in the food into their simplest form is processed by the digestive system. आप जानते हैं कि digestive system में small structures villus present हैं. Villus small finger-like projections हैं which are surrounded by blood vessels, a comprehensive network of blood vessels. So the nutrients absorbed in vessels are transferred to the blood cells. Blood cells क्या करते हैं? Blood cells इन nutrients को body के तमाम cells तक transfer कर देते हैं. Cells में mitochondria present होते हैं जो इनकी further processing करते हैं. अब cell में जाके ये तमाम nutrients, sugar, amino acids, fatty acids are changed into glucose. Carbohydrates तो ultimately glucose ही जाते हैं क्योंकि carbohydrates energy producers हैं.
प्रोटीन्स का कुछ पार्ट भी ग्लूकोज में चेंज कर लिया जाता है और फैटी एसिड्स का कुछ पार्ट भी ग्लूकोज में ट्रांसफर कर दिया जाता है. दिस ग्लूकोज is then utilized by the cell in the process of respiration. The respiration process takes place in mitochondria of the cell. And as a result of respiration, energy is produced. So, the theory which we stated in earlier that the food provides us energy is true to some extent, is true. But the mitochondria cannot produce energy through the process of respiration unless it receives oxygen that comes from air through the blood. In our respiratory system, here in the alveoli, the inhaled air that contains oxygen is transferred to blood. From the blood picks up this oxygen. Blood picks up this oxygen through with its red blood cells and transfer the oxygen to each cell. Here in the cell, mitochondria are present. Mitochondria utilize this glucose and this oxygen to complete the process of respiration so that energy is produced which afterward be utilized by our body to do the work. So the respiration process needs two things, glucose and oxygen. And as a result of respiration, we find energy. It is the energy actually that we use to do our work. ये वर्क इंटरनली भी हो सकता है और ये वर्क एक्सटर्नली भी हो सकता है. इंटरनली हमारे डाइजेशन में काम आता है, रेस्पिरेशन के में काम आता है और ब्लड के सेल्स के डिफरेंट प्रोसेसेस में काम आता है. डिफरेंट रिएक्शन सेल में हो रहे होते हैं, कुछ रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड होती है, तो ये प्रोड्यूस एनर्जी इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी यूज़ करते हैं और हम अपने एक्सटर्नल वर्क यानी मूवमेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, थिंकिंग के लिए भी एनर्जी यूज़ करते हैं. एटीपी के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती है. जैसे जैसे लंग्स में ऑक्सीजन आई थी ब्लड के थ्रू, इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है और ब्लड ये तमाम कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाता है. लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और ये वाटर या तो बॉडी यूटिलाइज कर देती है या इसे यूरिनेशन के प्रोसेस से बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है. सो द रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से कंप्लीट होता है कि जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं यानी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं. हमने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं. इसका मतलब ये है कि ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं थी, हमारी टारगेट प्रोडक्ट्स नहीं थी, बल्कि ये एक्स्ट्रा तौर पे मैन्युफैक्चर हो गई, लिहाजा इनको ये बॉडी से एक्सपेल करना ज़रूरी है. एक तरह से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं. सो अब आप अच्छे से जान चुके हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस किन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और कैसे कंप्लीशन तक आता है. इस पिक्चर में इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समराइज कर दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप था ब्रीदिंग और इसके साथ साथ एलाइड स्टेप था डाइजेशन या ईटिंग. ईटिंग के प्रोसेस से ग्लूकोज आई और ब्रीदिंग के प्रोसेस से ऑक्सीजन आई. ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक्चुअली
पाए तकमील तक पहुंचता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, यानी एटीपी के 36 मॉलिक्यूल। एटीपी इज द नेम ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एटीपी के 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, जिसे लंग्स में जिसे बॉडी सेल्स लंग्स तक ट्रांसफर कर देते हैं और फिर इसे माउथ के थ्रू बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी बनते हैं। वो वाटर वेपर्स अगर बॉडी रिक्वायरमेंट से पानी एक्स्ट्रा हो तो यूरिनेशन के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाता है, अदरवाइज इसे बॉडी के दूसरे रिएक्शंस में यूटिलाइज कर लिया जाता है। सो इट इज़ द समरी ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फर्दर। Now here we can define the respiration process properly, which is it is a process in which the cells of an organism produce energy by combining glucose, and the glucose is obtained from digestive system as a result of digestion of nutrients contained in the food, and the oxygen comes from respiratory system, and the source of oxygen is air, resulting in the release of carbon dioxide and water, which are byproducts not required by the body, and energy in the form of ATP. This energy is then utilized by the body to do work, useful energy. So here you came to know what was the purpose of digestion, digestive system and the respiratory system. The ultimate purpose was to produce energy. Next comes the homework. Just open your review exercise at page 18 of your CSS textbook. Look at the MCQ 7, which is Ali wants to label the energy released from respiration. Respiration के नतीजे में हमने पढ़ा कि energy produce की जाती है. What scientific term will he use for this? साइंटिफिकली एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी को किस से डिनोट किया जाता है? हीट से, लाइट से, एटीपी से या रेडिएशन से। बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है, आपने उस फॉर्म का नाम बताना है। नंबर 10th MCQ इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, गोल्जी अपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियस में। आप डायग्राम में भी देख चुके हैं और जानते भी हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है। सो आप इसका करेक्ट सर्कल फिल करेंगे। अब पार्ट सी देखिए, आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। आपने डिटेल से आंसर लिखना है और इसका पार्ट सी है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का अभी मैकेनिज्म स्टडी किया कि कैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसे इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद समर पैक का होमवर्क है। समर पैक में से आप पेज 6 पे एक्टिविटी 1.4 देखेंगे। 1.4 का पार्ट 1 क्वेश्चन 1 हम पहले लास्ट लेक्चर में यूज़ कर चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 है जो आप आज सॉल्व करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द ह्यूमन सेल्स डू नॉट रेस्पायर? अगर ह्यूमन सेल्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना करें तो क्या होगा, हमें किन तरह के कंडीशन से सफ़र करना पड़ेगा, आप उन्हें सिंपली और इन सिंपल वर्ड्स ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अब आप अपने समर पैक में से पेज 9 देखें और इसमें यहाँ आपको MCQ मिलेंगे। MCQ का रेलेवेंट MCQ जो आपके आज के टॉपिक से रेलेवेंट है आप उसे सॉल्व करेंगे, और MCQ 10, 11 आपके आज के टॉपिक से रेलेवेंट है। MCQ 10 है एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोडक्ट्स फॉर्म आर। रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं? ATP बनती है, शुगर बनती है, ऑक्सीजन या शुगर और ऑक्सीजन दोनों बनती है। जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको फाइंड आउट करेंगे और उसकी रीज़न भी बयान करेंगे। देन MCQ 11 इज विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल का कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया। आप उसको मार्क आउट करेंगे और उसकी रीज़न भी बताएंगे कि सिर्फ वही कि आपका चूज़ किया हुआ आंसर ही क्यों करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है। इसके बाद समर पैक में आप पेज 12 ओपन कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो आपके आज के टॉपिक से रेलेवेंट है। नंबर 12th MCQ है समराइज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन 3 स्टेप्स, स्केच देम ऑल्सो। स्केच देम मीन्स कि आप उनकी एक फ्लो शीट बनाएंगे एरोज की मदद से। नंबर 13 MCQ है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग प्रोसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो आप इनका बेसिक डिफरेंस बयान करेंगे।
So that was all about the SLO, which was about the mechanism of respiration. In the next lecture, we will discuss the comparison between breathing and burning process. Thank you very much.